إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے، جس کو سقیفہ بنی سعدہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہے، تو اس میں اہل تشیع کا تو موقف یہ ہے، ان کے تو تمام اس پہ تقریباً ان کا اجماع امت ہی ہے شیعہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو واضح بنا دیا تھا. اور اہل سنت میں یہ ہے کہ اہل سنت یہ تو اکثر کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں بنایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں دے دی تھیں کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے. تو اس پہ تھوڑا آپ کا موقف جاننا چاہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ آپ کی اس میں کیا تحقیق ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، میں نے اس کے اوپر اپنی تحقیق جو ہے نا 3 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروا دی ہے. اب یہی بات ہے، میں 3 گھنٹے دوبارہ تو نہیں اس پہ بول سکتا، میں اب اپنی بس مختصر سی اس کے اوپر ہی آپ کو جواب دے سکتا ہوں. میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55B. 55B وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. وہ جو حدیث قرطاس اہل تشیع کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے نا محرم کے دنوں میں، کہ حضرت عمر جو ہے وہ کاغذ قلم کے درمیان حائل ہو گئے تھے، اور وہ مسلم میں بھی ہے، اور امام مسلم لکھا، میں عوام الناس کے لیے لکھا. اور آپ بتائیے کہ شیخ زبیر صاحب نے آپ کو اور باقی اہل حدیث علماء نے کہا کہ حدیث قرطاس بیان کرنا حرام ہے. نہیں، حرام نہیں، انہوں نے کہا کہ کرنی نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ پھر فتنہ پھیلے گا، فتنہ پڑے گا. تو امام مسلم جو ہے نا یہ فتنہ پھیلا گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اب ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بخاری مسلم کے ترجمے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ جب ترجمے کریں گے تو آپ نوٹس بنائیں گے کہ اب یہ والی حدیثیں پڑھنی ہیں، ہم سے نوٹس بنوائیں. عوام تو پڑھے گی، تو عوام پھر جواب لینے کے لیے آپ کے مولویوں کے پاس جائے گی. ویسے تو ان کے پاس انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے، کنویں کے مینڈک ہیں، اپنے فرقے کی باتیں پڑھی ہوئی ہیں. پھر لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہمارے پاس ہی آ رہی عوام الحمدللہ، سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی. تو میرے بھائی وہ میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا. وصی رسول کون ہے؟ میرا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ موقف ہے کہ وصی رسول نہ تو سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وعلیہم السلام. پھر کون ہے؟ بلکہ وصی رسول جو ہے قرآن پاک ہے. یہ میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات از کنسرنڈ قیامت تک کے لیے. اس میں نے حدیث بھی بیان کی ہے، بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4459، اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، یہ میں جان بوجھ کے بار بار بولوں گا علیہ السلام تاکہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے. بخاری اور مسلم میں ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پر سلام ہو. میں جس کو نیک سمجھتا ہوں میں علیہ السلام کہوں گا، کیونکہ میں تو نماز میں کہتا ہوں تو نماز کے بعد کیوں نہ کہوں. پھر جب ہم قبر رسول پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابا بکر اور یا عمر نہیں کہتے. پھر قبرستان میں بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین کہتے ہیں. علیہ السلام میں کہوں گا، میں شروع میں یہ کیڑا اس لحاظ سے نکال دوں. اور یہ صحابہ کی سنت ہے کہ وہ
قبر رسول پر جا کے یہ چیزیں عرض کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ 75 ایئر زندہ رہے ہیں. ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا جی، حجۃ الوداع والا خطبہ، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. حیران کن بات ہے، 3950 نمبر حدیث ہے کتاب الحج چیپٹر میں، پورا خطبہ ہے. جابر بن عبداللہ سے وہ خطبہ بیان کیا، اور بیان کیا امام باقر علیہ السلام نے، امام جعفر کے جو والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو جب پتہ چلتا ہے میرے نبی کا بچہ آیا تو وہ پروٹوکول دیتے ہیں اور پھر ان کے سینے کے بٹن امام باقر کے کھولتے ہیں. وہاں پہ آئے گا محمد بن علی بن حسین، امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین، علی بن حسین امام زین العابدین کا نام تھا. تو وہ ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو جو مجھ سے پوچھے گا بتائے میں بتاؤں گا. تو حج کی سب سے لمبی حدیث 3950 نمبر صحیح مسلم کے اندر، اب مجھے یاد 3950 ہی ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں یہ شروع میں ہی مل جائے گی یہ والی حدیث. 2950 ہے یا 3950 ہے، بل وہ دیکھ لیجیے گا، چونکہ اب فی البدی گفتگو ہے اس طریقے سے نمبر یاد نہیں رہتے. بال مشکات میں حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلے نمبر پہ وہ حدیث مل جائے گی. تو اس حدیث میں جو خطبہ آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ لفظ ہے حجۃ الوداع، ودا نہیں ہے ودا، فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے. یہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے المستدرک للحاکم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. میرے نزدیک تو کتاب اللہ بھی کافی ہے، کیونکہ سنت اس کے اندر داخل ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس حدیث میں کتاب اللہ کا ذکر موجود ہے. وصی رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے تحت. بہرحال جو پولیٹیکلی وصی رسول خلیفۃ الرسول، اسی دیکھیں ہم اہل سنت بھی خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وصی رسول نہیں کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول یعنی آپ کے بعد خلیفہ چنے گئے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے. پوچھا اس کے بعد، کہا کہ عمر کو. پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو. یہ حضرت اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے، مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے. باقی جو انڈائریکٹ نکالتے ہیں نا جی مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ صرف حضرت ابوبکر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا ابوبکر سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں. اگر بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، تو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات میں بھی یہ موجود ہے حدیث، آپ کو سیدنا علی والے چیپٹر میں مل جائے گی صحیح سند کے ساتھ کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو یہ والا جو پروٹوکول والا معاملہ ہے، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ حضرت علی کے پیچھے. یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں، عبد الرحمن بن عوف کی. تو اس طرح کی جزوی فضیلتیں لوگوں کو حاصل ہیں. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا. شروع میں سیدنا علی نے بیعت نہیں کی، بعد میں 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کر لی. بخاری مسلم کی احادیث ہے. لہٰذا میں اسی بات کو حق مانتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جو ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے، اور اس میں جو سعد ابن عبادہ ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو ان کا اختلاف ہے. باقی پوری امت نے اتفاق کر لیا. یسوع مسیح نئے عہد نامے میں پھر اس کے 12 شاگرد، پھر تیسرے نمبر پہ پالوس رسول آتا ہے. اور اگر آپ مسلمان جو بڑے دھوکے باز ہیں اور جھوٹے ہیں، مسیحوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو مسیحیت کو چھوڑ چکے ہیں، آپ تو پالوس کے پیچھے چلتے ہیں، تو عقل کے اندھو آپ یہ جانو کہ پالوس جو ہے وہ یسوع کا حواری پجاری ہے. وہ 12 شاگردوں کے بعد آتا ہے. آپ اس کو نمبر 1 پہ نہ لے کے آئیں، یہ آپ کے جاہلیت کا ثبوت ہے.
सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का दावा सुना, मुसलमानों को उसने बेवकूफ भी करार दे दिया, जाहल भी करार दे दिया कि मुसलमान ये बात करते हैं कि पौलुस ने नया मजहब शुरू किया, चूड़े अज़म का या मसीहत का जो मौजूदा है, इसका जो बानी है वो पौलुस है। और मैं भी ये कहता हूं, हमारे मुसलमान भी ये कहते हैं। अब इस मामले में इसने हम मुसलमानों को बेवकूफ और जाहल करार दे दिया। हालांकि मुसलमान, जो भी मुसलमान किसी भी सतह पर बात करता है, वो इनके मुंह पर रेफरेंस हवाला जात मारता है और टका टका के मारता है, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक है, चाहे कोई भी मुसलमान स्कॉलर है, आलम दीन है। जब इस मौजू पर या किसी भी मौजू पर मसीहत की मिट्टी पलीद करते हैं तो हवाला जात के साथ, रेफरेंस के साथ करते हैं और वहां पर इनके मुंह देखने वाले होते हैं। चलो खैर, आज असल में ये जिस तरीके से वो हमारे बुजुर्ग जो हैं या दूसरे स्कॉलर हैं वो हवाला जात पेश करते हैं, रेफरेंस पेश करते हैं, वो इनको समझ नहीं आता। आज मैं अपने रंग में इनको हवाला जात पेश करता हूं जो इनकी समझ में आता है। वो अंदाजे बयां, वो अंदाजे तखातुब इनको पसंद नहीं आता जो मुसलमान इनके लिए रवा रखते हैं। इनके लिए मेरे जैसा नकम्मा जो रवा रखता है वही इनकी समझ में आता है। सबसे पहले देखते हैं कि यस्सु की जो तालीम क्या है, यस्सु की तालीम क्या है। इसको हम देखेंगे मत्ती बाब 5 और आयत 17 में। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों को रद्द करने आया हूं, मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन नाबूद नहीं हो जाते, जब तक आसमान और जमीन नाबूद नहीं हो जाते, शरीयत का कोई छोटा सा हरफ या जरा सा शोशा तक मिटने ना पाएगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। अब ये जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, ये जो है ना, ये जहन में रखिएगा, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ता है और दूसरों को भी यही करना सिखाता है, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करता है और दूसरों को भी इन हुक्मों की तालीम देता है, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी जिंदगी शरीयत के आलिमों और फरीसियों से बेहतर ना होगी, तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना हो सकोगे। ये था पौलुस यस्सु का हुक्म, किसके बारे में? शरीयत के बारे में, यस्सु के का फरमान। अब देखते हैं जो पौलुस का फरमान शरीयत के बारे में क्या है। गिलतियों बाब 3 आयत 10 ता 13 तक। मगर जितने शरीयत के इमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि जो कोई शरीयत की किताब की सारी बातों पर अमल नहीं करता वो लानती है। अब यह साफ जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के हुजूर में रास्तबाज नहीं ठहराया जाता, क्योंकि लिखा है कि सिर्फ वो शख्स जो ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता है जीता रहेगा, और शरीयत का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि लिखा है कि शरीयत पर अमल करने वाला शरीयत की बातों से जिंदा रहेगा। मसीही ने यानी यस्सु ने जो हमारे लिए लानती बना, हमें नूर लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है। अब इस पे बाद में बात करेंगे, इस पर भी बाद में बात करेंगे। पहले जो मैंने बात उसमें छोड़ी है कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो ले। अब इससे इस जुज से, हालांकि वो पूरी, अगर आप, मैंने पूरा हवाला पढ़ा उसमें देखेंगे तो वो यस्सु जो हो वो शरीयत के बारे में इस तरीके से कह रहा है कि वो फकीयों फरीसियों के अगर मुकाबल तुम्हारा शरीयत पर अमल हुआ तो फिर तुम खुदा की बादशाही में या जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे। अगर उनके मुकाबल हुआ, हाँ, उनसे अगर ज्यादा शरीयत पर अमल हुआ तो फिर खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। उसके बावजूद ये इस जुज को जो मैंने पहले कहा, जिसको पकड़ते हैं कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। अब ये कहते हैं कि शरीयत को पूरा कर दिया यस्सु ने,
कैसे पूरा कर दिया? उसने जी कुफारा दे दिया, उसने कुफारा दे दिया। और भाई कैसे कुफारा दे दिया? अब अगर हम कुफारे की कुर्बानी को देखते हैं तो कुफारे की कुर्बानी हमें अहबार बाब 16 1 आयत तक 10 तक नजर आती है। मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा। इसमें यह है कि वो बाइबल के खुदा का हुक्म हुआ कि जो काहिन है वो 2 बकरों को बाइबल के खुदा के हुजूर में खड़ा करे, बाइबल के खुदा के हुजूर खड़ा करे और उन पर चिट्ठियां डाले, एक खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकलेगी उसे खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील की नाम की चिट्ठी निकलेगी वो जिंदा खड़ा किया जाएगा ताकि उससे कुफारा दिया जाए और उसे अज़ाज़ील के लिए यानी शैतान के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाएगा। यह है कुफारे का हुक्म। अब यस्सू ने कोई पूरी नए अहदनामे से साबित कर दे कि यस्सू ने कोई एक बकरा भी अज़ाज़ील के लिए छोड़ा हो, कोई एक बकरा भी अज़ाज़ील के लिए यानी शैतान के लिए छोड़ा हो। अब आप कहते हैं कि नहीं जी, यस्सू ने कोई बकरा नहीं छोड़ा, यस्सू खुद कुर्बानी का कुफारा बन गया, खुद बरा बन गया। अब जो कुफारा है वो किस तरीके से है कि उसको जिंदा छोड़ा जाएगा कुर्बानी के अपना अज़ाज़ील के लिए जिंदा छोड़ा जाएगा बियाबान में, जबकि बाइबल बताती है कि यस्सू को जलील करके रोमी सिपाहियों ने और यहूदियों ने जलील करके इसके मुंह पर थूक कर जलील करके कत्ल किया। इसका मतलब ये कुर्बानी नहीं हुई, चले मान लेता हूं यस्सू का कोई एक फरमान दिखा दे कि मैं अज़ाज़ील के लिए शैतान के लिए कुफारा देने जा रहा हूं, कुफारे के तौर पर मैं ही तुम्हारा कुफारा हूं, जिसे बियाबान में चलो उसने निजाम बदल दिया, वो बियाबान में नहीं गया। तो कोई एक फरमान दिखा दो जहां पर उसने ये कुफारे की कुर्बानी को पूरा किया हो शरई एतबार से। कैसे है कि अज़ाज़ील के लिए शैतान के लिए छोड़ा जाएगा बकरा। अब इसका मतलब यह होगा कि जो यस्सू ने कुर्बानी दी है वो शैतान के लिए दी है, बाइबल के खुदा के लिए जो पत्थर का है, जो जिसको पिलर की तरह याकूब ने खड़ा किया और उसके सर में तेल डाला, उसकी तरह उसके लिए नहीं बल्कि अज़ाज़ील के लिए दी है। मान लो नहीं मानते तो फिर इसका मतलब यस्सू ने कुफारा नहीं दिया, शरीयत को पूरा नहीं किया, शरीयत कायमो दायम थी। पौलुस ने शरीयत को लानत करार दे दिया। और यहां तक गलतियों के नाम खत नए अहदनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यस्सू, वो लानती बना यहां तक यह करार दे दिया कि यस्सू लानती है। पूरे बाइबल में यह दिखा दो कि यस्सू की तालीम हो कि मैं लानती हूं, यस्सू ने खुद कहा हो कि मैं लानती हूं। पूरी बाइबल में यस्सू की कोई एक तालीम दिखाएं कि यस्सू ने खुद कहा हो, एक जुमला यस्सू ने खुद अपने तौर पर वाहदे मुतकल्लम के साथ यानी कि मैं लानती हूं, या उसने कहा हो हम लानती हैं। फिर पौलुस का बहुत बड़ा दावा है कि मैंने रसूलों से तालीम नहीं पाई, मैं डायरेक्ट खुदा से या यस्सू से तालीम पाता हूं। अब उस दौर में मत्ती का और लूका का जूतम बेजार एक दूसरे के साथ झगड़ा था, इख्तलाफ था, शक्कूक की चादर छाई हुई थी। किस बात में? यस्सू की वल्दियत के बारे में कि यस्सू बेटा किसका है। मत्ती कह रहा था कि यस्सू जो है वो यूसुफ बिन याकूब का बेटा है। लूका कह रहा है कि यूसुफ बिन एली का बेटा है। मत्ती कह रहा है यूसुफ बिन याकूब का बेटा है और लूका कह रहा है यूसुफ बिन एली का। और यह जूतम बेजार इनका होता रहा, होते होते कभी भी फैसला ना हो पाया। आज तक वही कुछ लिखा हुआ है। इससे साबित होता है यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब यह है कि बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। कहीं पर पौलुस ने कहीं पर, अब पौलुस के 14 खतूत में दिखा दो, एमाल की किताब में दिखा दो कि पौलुस ने इस झगड़े को, इस फड्डे को, इस मसले को हल किया हो। क्योंकि उसका तो डायरेक्ट रास्ता था, वो तो कह सकता था
कि भाई यूसुफ जो यस्सु है वो यूसुफ बिन याकूब का बेटा है या यूसुफ बिन एली का बेटा है। इसका मतलब यह है कि पौलुस ने दीने मसीहत की जो यस्सु का दीन था उसको भी बिगाड़ कर पौलुस ने एक नया दीन शुरू कर दिया, उसको हम कहते हैं पौलुसियत। अब अगर कोई इस पर भी रजामंद नहीं है, सैमी सैमसन या कोई भी, तो मुझे अपने चर्च में बुलाए, चर्च में अपने डिबेटर्स को मेरे सामने खड़े कर देना, इंशाल्लाह मुंह तोड़ दूंगा और वीडियो कैमरों के सामने मनवा दूंगा कि ये जो तुम लिए फिर रहे हैं ये यस्सु की तालीम नहीं है, ये पौलुस की तालीम है। ऐसे बकवास कर देना कि मुसलमान जाहल हैं, बेवकूफ है। मुसलमान कतई जाहल कतई बेवकूफ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ जाहिल होने के लिए सिर्फ एक ही है कि वो मसीही हो, वो चूड़ा हो। बेवकूफ और जाहिल होने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है और वो है मसीही होना या चूड़ा होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस जहालत, इस बेवकूफी से आपकी जान छुड़ाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये क्रिश्चियन क्या है कि ये चूड़े हैं, चमार हैं, भंगी हैं, फलाना है, ढुमका। दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। एक जमाने से 1400 साल से ज्यादा आप लोग शोर मचा रहे हैं, ईसा 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 ईसा। कोई अक्ल की बात करो, हमें जो सही वाला ईसा वो पेश करो, और उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी होगी। कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। और ख्याल रहे कि जैसे ही आप इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उभर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा, ये आप खुद अपने कलाम में से पेश करते हैं, और अभी मैं उसको साबित करूंगा। जो बाइबल मुकद्दस का जो कुदसी है, जो कदूस है, जो पाक है, जो होली है, जो बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, खुदावंदों का खुदा है, वो कुरान का जो खपती ईसा है ना, वो नहीं है। और जो खपती मुसलमान हैं जिसको मानते हैं, और खपती जो मुस्लिम डिबेटर हैं जिसको हाईलाइट करते हैं, पेश करते हैं, वो अपने आप को डाउन करते हैं। जाली इस्लामी ईसा, जाली इस्लामी ईसा। ख्याल है कि इस्लाम ने इंतहा कर दी हुई है झूठ बोलने की, धोखेबाजी की, और उनके धोखे और झूठ की इंतहा ये है कि उन्होंने जाली ईसा भी बना दिया हुआ है। हर मरहले पे, हर कदम कदम पे झूठ बोलना इस्लाम का शेवा है। अब इंतहा ये है कि उन्होंने अपने कुरान में और अपने हदीसों में, अपने असबाक में, अपने लेसन्स में एक जाली ईसा पैदा कर दिया हुआ है। ये सूद में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, ये सूद भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनो दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने
अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।